Okay, so let us continue our last discussion. Is the screen visible? Yes, sir. Yeah. Okay. So in last lecture, I already defined what is meant by linear differential equation, or how you identify whether given differential equation is linear or not. Okay. So there are two conditions. Uh, First is what, that differential equation. Uh, that differential equation must contain dependent variable and its derivative only in first degree. Okay. And the dependent variable and the differential coefficients are not multiplied together. These are the two conditions. If any differential equation satisfies this, then we call it as linear differential equation. And generally any linear differential equation with constant coefficient, okay, can be written in this form. This is the general form of a linear differential equation. Please remember this form. All your examples are basically in this form only. Okay, an dn y upon dxn plus an minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 up to a naught y is equal to some function f of x. Okay, where this a naught, an, a naught, a1, a2 up to an, these are constant. Therefore, we call this differential equation as linear differential equation with constant coefficient. Okay. There are some differential equation. There are some differential equation in which these coefficients are variable. Okay, so that part is also there, that you can say the extension of this linear differential equation with variable coefficients. Okay, so I think this part is already done. And just for simplicity or just for writing purpose, we can denote d by dx by capital D. Then by doing some simplification, you will get the linear differential equation of the form phi of d times y is equal to f of x, where what is this phi of d? This phi of d is it's like a polynomial in d. Okay, nth degree polynomial in d. So now onwards you can treat this form as the general form. Okay, this form as the general form of linear differential equation. Okay, और आपको ये एग्जांपल से भी मैं शो करता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म में लिखना है. Okay, what is your phi of d? Basically the main aim of this notation is what, from the given differential equation you have to identify the value of phi of d, because your solution, the general solution of this linear differential equation is depend on this phi of d. तो phi of d का एक रोल होगा आगे, इसलिए आपको प्रॉपर phi of d कैलकुलेट करना है. ओके, एंड उसके लिए सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. So this is also one more way to write the general form of linear differential equation with constant coefficient. Okay, and now the next part is the general solution of linear differential equation. What is the formula to find the general solution of linear differential equation? Okay, so before that you must understand first what is meant by general solution. I think we already discussed this part. Okay, can anyone tell me quickly what is general solution? Yes, what do you understand? Anyone? Can you just Set of all possible solutions. very good. Okay, so general solution means it cover all the possible solutions of your given differential equation, and mathematical condition to check whether all possible solutions are get covered in your solution or not. So how you mathematically check that part? So for that we have this definition. If in that solution the number of arbitrary constants are exactly equal to the order of the differential equation, 1 mark का question आपको इस पे आ सकता है. Okay, exam है. So number of arbitrary constants is equal to order of the differential equation, then we can say that that solution is general solution. If not, then it may be particular solution, or it may be just a solution like that. Okay, and okay, so here, so now our aim, okay, the main aim of this unit or objective of कैसे भी बोलो, ओके, इस यूनिट में बेसिकली आपको क्या लर्न करना है? वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आप बस इतना ही लर्न करने वाले. दैट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट. ओके, फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, आफ्टर दिस फर्स्ट यूनिट you able to find the general solution of linear differential equation of nth order. Okay? So now onwards I will divide your given linear differential equation. ये आपका ओरिजिनल linear differential equation है, phi of d times y is equal to f of x. Okay, but just to consider its general solution. Okay, here I have differentiated in two cases. Okay, फर्स्ट केस में क्या है, जहाँ पे मैंने f of x जो राइट साइड का जो आपका फंक्शन था उसको मैंने डायरेक्टली जीरो लिया है. सो दिस इज माई केस वन. Okay, where RHS is 0, and this is my case 2 where RHS is non-zero. Non-zero means it takes some value. Okay,
or you can say f of x may be 0, f of x may be x square, f of x may be sin x, any function on RHS. Okay, so depending on the RHS of your given linear differential equation, I will repeat again, depending on the RHS of your given linear differential equation, we have two different cases for the general solution. Okay, so in first case where your RHS is 0, you have to identify only one solution, that is called as YC. Okay, तो आज के लेक्चर में मैं यही डिफाइन करने वाला कि व्हाट इज हाउ यू एक्चुअली फाइंड द YC. YC मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, कैसे करना मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला. ठीक है, सो व्हेन योर RHS इज 0, दैट गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज YC. कैसे कैलकुलेट करने आगे हम देखने वाले हैं. एंड इफ इट इज नॉन जीरो, इफ दैट फंक्शन इज नॉन जीरो, मैं प्रूफ भी आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं. इफ इट इज नॉन जीरो, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड टू सॉल्यूशंस. One is YC, second is YP, and consider addition of this. That gives you the final general solution of given linear differential equation. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, बट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हियर वी हैव कंसीडर्ड टू केसेस. Okay, first case where your RHS is 0, and second case where your RHS is non-zero or some f of x. Okay, when RHS is 0, in that case you have to find only one solution, YC. So here remember, in all cases y is actually your general solution. Y calculate करना है मतलब general solution calculate करना है. So y is equal to YC. So in that case your general solution is just a YC when your RHS is 0, and if it is non-zero then YC plus YP become general solution. Okay, तो obviously आपको इसे समझ में आ रहा होगा. When your RHS is 0, YP is 0. Okay, when your RHS is 0, YP is 0, इसलिए यहाँ पे y plus YP नहीं आ रहा है. Okay, अभी आप सब दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस YC एंड YP. YC क्या है, YP क्या है. ओके, सो इन टुडेज सेशन विल फर्स्ट गो विद दिस फर्स्ट केस वेर इन ऑल एग्जाम्पल्स योर RHS इज 0, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द एग्जाम्पल्स ऑन दिस सेकंड केस. आज के लेक्चर में बस हमें फर्स्ट केस पे फोकस करना है जहाँ पे RHS आपकी 0 होगी, एंड व्हेन योर RHS इज 0 यू हैव टू जस्ट फाइंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट YC. नाउ व्हाट इज दिस YC? दिस YC इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, कैसे कैलकुलेट करना है आगे के स्लाइड में है ही वो. एंड YP इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, सो दिस विल डिस्कस मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, but in today's session we'll focus on only this solution, that is complementary function. Okay, now let us first discuss what is meant by complementary function or complementary solution. Okay, so complementary function of a given linear differential equation. अभी यहाँ पे जो मैंने linear differential equation कंसिडर किया है ऑलरेडी उसके RHS में मैंने 0 कंसिडर किया, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट केस में डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड केस में जाएंगे. यू कैन ट्रीट एज अ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, ऐसे भी आप ट्रीट कर सकते हो. होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, नॉन जीरो मीन्स नॉन होमोजेनियस एंड जीरो मीन्स होमोजेनियस. ओके, हाँ, सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, वेर योर RHS इज 0 इज एक्चुअली, हाँ, so complementary function is actually a solution of this linear differential equation where your RHS is 0. यह डेफिनेशन है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या आपको मैं बोलता हूँ. इन जनरल एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिनोटेड बाय दिस. ये हमने अभी देखा है. इन जनरल एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिनोटेड बाय दिस. ओके, तो एंड प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, व्हेन योर RHS इज 0 वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन विच इज YC, and when your RHS is non-zero then you have to find YC plus YP. okay, तो यहाँ से भी आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो. सो बेसिकली YC होता क्या है, व्हाट इज दिस YC? YC इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन योर RHS इज 0. आपको बस करना क्या, RHS 0 सेट करो. अगर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे वहाँ पे. इफ इट इज नॉन जीरो, इन दैट केस कंसिडर RHS 0 एंड देन यू कैन कैलकुलेट YC. ओके, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, जब आप सेकंड केस में आते हो व्हेन योर f of x इज नॉन जीरो, पर आपको उस केस में भी YC कैलकुलेट करना ही है. सो इन दोनों फॉर्मेट में YC तो कंपलसरी है. अगर RHS 0 है तो YC कैलकुलेट करना है, RHS नॉन जीरो तो YC कैलकुलेट करना है, और उसके बाद YP भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, but in second case where your f of x is non-zero, how you calculate your YC? By treating this f of x to be 0.
ओके तो सिंपली बस इतना याद रखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको YC कैलकुलेट करना है, ओके तो उस केस में जो आपकी RHS है f ऑफ x, ये आपको 0 ही लेना है. इफ इट इज 0 वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इफ इट इज नॉन 0 ट्रीट एज 0 एंड देन फाइंड YC. Okay, so immediately you will not understand what is the logic behind this formulas. Okay, तो जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा ना, एक नहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जब कैलकुलेट होगा मे बी मिडल ऑफ दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस YC एंड YB. ये सब कुछ हमें क्यों करना है वो आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम आप नहीं देखोगे ना तब तक ये आपको इतनी जल्दी क्लिक होगा नहीं. ओके नाउ लेट अस फोकस हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी. जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS 0 आता है, ओके मीन्स दिस, उसका जो भी सोल्यूशन होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय YC. ओके नाउ स्टेप्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके कैसे कैलकुलेट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सबसे मेजर जो रोल होता है वो होता है फाई ऑफ डी का. ठीक है, तो आपको स्टेप 1 में करना क्या है, फाइंड फाई ऑफ डी फ्रॉम योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे करना है, मैंने बोला था कैपिटल D यूज करो, मीन्स पुट D इज इक्वल टू D बाई dx. ओके फिर वहाँ से y कॉमन लेना है, आपको ब्रैकेट पे एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी, दैट पॉलिनोमियल इज नथिंग बट फाई ऑफ डी. आई विल शो यू फ्रॉम वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू फाइंड द फाई ऑफ डी. सेकंड क्या करना है, फ्रॉम दिस फाई ऑफ डी कंसिडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके ऑक्सिलरी इक्वेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, D के जगह पे एक वेरिएबल पुट करो, लेट अस पुट m and equate it to 0. okay so this equation is called as auxiliary equation. अभी आप बोलोगे, क्योंकि ये आप अच्छे से याद रखो, जब आप बुक रेफर करते हो बुक में उन्होंने D का ही यूज़ किया है, बट यू कांट ट्रीट, यू कांट कंसिडर दिस इक्वेशन. या आप क्यों नहीं कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे D ऑपरेटर है. ओके ऑपरेटर मतलब ऐसे केसेस में आप इसको पॉलिनोमियल ट्रीट ही नहीं कर सकते हो ना. पॉलिनोमियल ट्रीट करने के लिए आपके पास वो जो पॉलिनोमियल है दैट मस्ट बीन सम वेरिएबल, वो एक वेरिएबल में चाहिए ना कि ऑपरेटर में. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, x² + 2x + 1 दिस वी कैन ट्रीट एज अ पॉलिनोमियल. x² + 2x + 1 दिस वी कैन ट्रीट एज अ पॉलिनोमियल, बट वी कांट ट्रीट दिस एज अ पॉलिनोमियल क्योंकि ये ऑपरेटर है. ओके तो बुक में उन्होंने ये सब कुछ ये सारा कैलकुलेशन D में ही रखा है. okay but which is mathematically which is not correct, so it's better to replace D by m. okay and that is called as auxiliary equation. उसकी definition ही क्या है, that is defined by auxiliary equation. तो auxiliary equation का simple meaning क्या होता है, जो आपका ऑपरेटर था, जो आपका phi of D है, okay उसमें D के जगह पे m रखो and equate it equal to 0. that is nothing but auxiliary equation. हाँ और आपको करना क्या है, स्टेप 1 में okay now this become a polynomial in m आपका वेरिएबल है, so now this become polynomial in m. now find roots of this equation. इसके आपको रूट्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, इतना है आपको स्टेप 1 में करना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाई ऑफ डी कैलकुलेट करना है, D के जगह पे m पुट करना है, फाई ऑफ m इक्वल टू 0 कंसिडर करके उसके रूट्स कैलकुलेट करने. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप. ओके रूट्स मिलने के बाद, ओके आफ्टर कैलकुलेटिंग द रूट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द रूट्स. ओके द ऑक्सिलरी इक्वेशन वी कैन राइट इट्स करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो 2 ही स्टेप में आपको आंसर मिलता है. अभी आपको बस करना क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स दैट रूट मे बी रियल, दैट रूट मे बी रियल एंड रिपीटेड, दैट रूट मे बी कॉम्प्लेक्स, दैट रूट मे बी कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड. तो ये जो भी होता है दैट विल बी द नेचर, क्योंकि कौन से नेचर में आपको रूट्स मिल रहे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट नेचर यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो बेसिकली यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करने के बाद आपको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाता है. रूट्स कैलकुलेट करने के बाद आपको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है. ना अभी बस यही एक क्वेश्चन पेंडिंग है कि कैसे करना है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द रूट्स यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बट हाउ. ओके सो वो आपका भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी गिव सम रिमार्क्स. ओके instead of this let me directly take the how we can write the complementary function from the nature of the roots. पहले ये ले लेता हूँ, फिर आपको वो सारे रिमार्क्स समझ में आ जाएंगे. ओके तो अभी हम कौन से स्टेज पे, हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसमें हमने फाई ऑफ टी कैलकुलेट किया था. ओके एंड फ्रॉम दैट फाई ऑफ डी वी हैव टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. व्हाट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन,
फाई ऑफ एम इक्वल टू 0. नाउ दिस बिकम अ पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल होगी. उसके रूट्स कैलकुलेट करो. रूट्स कैलकुलेट करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन दिस 4 नेचर वी हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ लेट मी टेल यू वन बाय वन. तो पहले केस पे आता हूँ. पहले केस क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो इफ योर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लाइक से 1 2 3, मैं सिंपल केसेस में एक्सप्लेन करने वाला. देन हाउ वी राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? ओके, अभी आई विल डायरेक्टली टेल यू द फॉर्मूला हाउ टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसका जो प्रूफ होगा यू विल नॉट अंडरस्टैंड इमीडिएटली. एट मिडल ऑफ दिस टॉपिक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. बुक में तो डायरेक्ट गिवन है, बट आप तभी उस पर सोच सकते हो जब आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी. अभी तक हम आधे केसेस से हम लर्न कर रहे हैं. तो जब ये पूरा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये इन सारे फॉर्मूलेस का लॉजिक क्या है. ओके, सो व्हेन वी हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हाउ वी राइट द YC फ्रॉम दिस. तो कुछ चीज़ें आप याद रखो. ओके, हर एक डिस्टिंक्ट रूट के करस्पॉन्डिंग, इफ K इज योर डिस्टिंक्ट रूट, हर एक डिस्टिंक्ट रूट के करस्पॉन्डिंग आपका टर्म आता है e⁻kx. मैं फिर से बोल रहा हूँ, रियल हर एक डिस्टिंक्ट रियल रूट के करस्पॉन्डिंग आपका टर्म आता है e⁻kx. एंड उसका जो कोएफिशिएंट होता है, ये उसका जो कोएफिशिएंट होता है, दैट विल बी आर्बिट्री कांस्टेंट. दैट विल बी कांस्टेंट. ओके, और दैट विल बी आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके, तो पहले केसेस में कैसे लिखना है आपको मैं बोलता हूँ. 1 आपका रूट है, 1 के करस्पॉन्डिंग एक टर्म कंपल्सरी आने वाला है e⁻1 × x. ठीक है. सिमिलरली 2 के करस्पॉन्डिंग और इस ओके 2 के करस्पॉन्डिंग एक कंपल्सरी टर्म आने वाला है e⁻2x एंड 3 के करस्पॉन्डिंग एक कंपल्सरी टर्म आने वाला है e⁻3x. तो मैंने पहले आपको क्या बोला था कि हर एक टर्म, हर एक रियल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टर्म आपका आता है e⁻√x. अभी आपको बस क्या देना है? ओके, इन सबके आपको एडिशन तो करनी ही है. इन सबके आपको एडिशन करनी है. हाँ, नाउ यू हैव टू डिसाइड द कोएफिशिएंट. मैंने आपको बोला कि कोएफिशिएंट में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आने वाला है. ओके, सो दैट कोएफिशिएंट इज टोटली डिपेंड ऑन रिपीटेशन. ओके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ रूट्स आपके रिपीट होने वाले हैं. टर्म तो एक ही आएगा. फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बोला ना, डिस्टिंक्ट जो नंबर होता है उसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म आता है. फॉर एग्जांपल 2 2 अगर ये रूट्स में लेता हूँ तो टर्म आपका एक ही आने वाला है e⁻2x. ओके, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट? फॉर एवरी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यू हैव टू कंसीडर e⁻kx. फॉर एवरी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यू हैव टू कंसीडर e⁻kx. तो अगर 2 2 2 आता है तो देर इज ओनली वन रूट, तो टर्म आपका एक ही आएगा e⁻2x. बट कोएफिशिएंट चेंज होगा. इन दैट केस कोएफिशिएंट आपका चेंज होगा. ओके, अभी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूँ. ओके, मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया. पहले ये टर्म कैसे लिखना है, ये हर एक रियल और डिस्टिंक्ट रूट के करस्पॉन्डिंग आता ही है. ओके, अभी कोएफिशिएंट कैसे डिसाइड करना है? कोएफिशिएंट डिसाइड करने के लिए आपको रिपीटेशन चेक करना होगा. ठीक है, तो उसके लिए आप रिजल्ट सुनो. इफ एनी रूट is repeated n times, if any root repeated n times, then its coefficient is considered as polynomial of degree n-1. तो उस केस में आपको कोएफिशिएंट क्या कंसिडर करना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1. और आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है, ये जो कोएफिशिएंट होगा ये कोएफिशिएंट इन आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आर्बिट्री कांस्टेंट का ही है. सो फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये रूट, ये यहाँ पे देखो, दिस रूट इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो आपको कोएफिशिएंट क्या कंसिडर करना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 1 नंबर लेस. ओके, सो हाउ यू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2? c1 c2x c3x². सिंपल. दिस इज योर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. इफ एनी रूट इज रिपीटेड से 2 टाइम्स, अगर कोई रूट आपका 2 टाइम्स रिपीट होता है तो आपको क्या लिखना है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 मतलब 1. तो व्हाट इज योर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1? c1 + c2x. सो दिस इज इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. दिस इज इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. सिमिलरली दिस इज c1 + c2x + c3x² + c4x⁴. दिस इज इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड सो ऑन. यू कैन कंटिन्यू विद द पावर. ठीक है. ओके, लेट मी इरेज एवरीथिंग और एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ. सो योर फर्स्ट केस इज व्हाट? सपोज योर रूट्स आर. अभी आप बस इतना फोकस करो कि आपने कुछ तो कैलकुलेट किया है और आपके पास रूट्स आर है. रूट्स तो पता ही है सबको. तो सपोज योर रूट्स आर से 1 2 3. देन हाउ वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? आपको मैंने रिजल्ट क्या दिया था? हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टर्म आता है e⁻k × x. सो e⁻1 × x.
ओके, प्लस ई रेस टू 2 इंटू एक्स प्लस ई रेस टू 3 इंटू एक्स। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या दिया था, कोएफिशिएंट कैसे डिसाइड करना है, अगर कोई रूट n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके कोएफिशिएंट में n-1 की पॉलिनोमियल आनी चाहिए। तो यहाँ पे वन रूट रिपीटेशन में है क्या, वो रिपीटेशन में है ही नहीं, दिस इज अ डिस्टिंक्ट रूट, दिस वन रूट इज नॉट रिपीटेड। इफ इट इज नॉट रिपीटेड तो कोएफिशिएंट में क्या आएगा, ये एक ही बार आ रहा है, ये एक ही बार आ रहा है, तो कोएफिशिएंट में क्या होगा, यस कोएफिशिएंट में क्या होगा, yes say it loudly. If that root is repeated one time, then in coefficient we have to consider polynomial of degree what, zero ना, zero good, polynomial of degree 0। और polynomial of degree 0 का मीनिंग क्या होता है, only constant, only constant good, okay। तो यहाँ पे एक ही नंबर आएगा C1, ठीक है, ये भी एक ही बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर आएगा C2। अभी आप बोलोगे यहाँ पे C2 क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि C1 आपने यूज किया था ऑलरेडी, यहाँ पे इट डिपेंड ऑन यू, सीक्वेंस आप कैसे भी रखो, एंड यहाँ पे आ जाएगा C3, इतना सिंपल है। दिस इज योर फाइनल YC, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। एक और केस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट दिस से 3 4, सो योर YC बिकम, देर आर ओनली 2 टर्म्स, 1 is 3 तो उसके करस्पॉन्डिंग आएगा e raised to 3x, सेकंड इज 4 उसके करस्पॉन्डिंग आएगा e raised to 4x, ओके। ये एक ही बार आ रहा है तो C1, ये एक ही बार आ रहा है C2, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रियल एंड डिस्टिंक्ट। रिपीटेशन का पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो इस केस में एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस से 2 2 2, मैं डिफिकल्ट लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। अभी देखते हैं। सो हियर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर, कितने डिस्टिंक्ट रूट है यहाँ पे, 3। So first is e raised to 2x प्लस सेकंड क्या है e raised to 3x प्लस e raised to 5x। अभी बस मुझे कोएफिशिएंट चेक करना है, कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पे हर एक केस में। नाउ लेट अस डू फॉर फर्स्ट केस में जो 2 रूट है आपका वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर इन द कोएफिशिएंट यू हैव टू कंसिडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। So what is the polynomial of degree 2? Simple है, C1 plus C2x plus C3 x square, करेक्ट है, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो उसके कोएफिशिएंट में आने वाला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। व्हाट इज योर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1? C4 plus C5x, एंड लास्ट में एक ही बार आ रहा है तो आ जाएगा C6, हो गया। ये नंबरिंग आप मतलब C1 ऑलरेडी यूज किया तो एक फिर से यूज नहीं करना, इसलिए मैंने C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप हमेशा देखो जितना काउंट आपका रूट्स का होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट वहाँ पे कंपलसरी आने वाले। सो हियर यू कैन सी टोटल देयर आर 6 रूट्स, 1 2 3 4 5 6, एंड एट द एंड यू एंड दिस सीक्वेंस बाय C6। हियर यू विल हैव ओनली 3 रूट्स, सो हियर यू कैन एंड दैट सीक्वेंस बाय C3। तो जितने नंबर ऑफ रूट्स है वहाँ तक वो ऑटोमेटिकली एंड होने वाला है। दैट इज ऑल अबाउट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट। एग्जाम्पल लेने वाला हो तो ये लिंक तभी होगा जब एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके। नाउ कंसिडर, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स रूट। मुझे पहले ये बोलो, कोई भी एक पॉलिनोमियल है या कोई भी एक इक्वेशन आप कुछ भी कंसिडर करो, अगर मैं बोलता हूँ इफ 1 plus i, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रूट, लेट अस टेक 2 plus i, 2 plus i is say one root of any given polynomial, जो भी आप कंसिडर करना है आप करो, ओके। व्हाट अबाउट 2 minus i, ये पता है क्या रिजल्ट आपको? हाँ यस यस। व्हाट अबाउट 2 minus i? अगर मैं बोलता हूँ कि 2 plus i ये एक रूट है गिवन पॉलिनोमियल का, व्हाट अबाउट 2 minus i? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट 2 minus i? ये पता है क्या आपको? Yes, conjugated root. हाँ, तो Conjugated कॉम्प्लेक्स yes. में क्या होता है, ओके, कि अगर 2 plus i रूट है ना, 2 minus i भी रूट होगा। ओके, आपको ये एग्जांपल से भी क्लियर होने वाला है। सो दिस कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, दैट इज व्हाट द रीजन।
दिस कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। आप कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसिडर करो 3 डिग्री की या 2 डिग्री की, जब भी उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं ना वो पेयर में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको बस 1 + i रूट कैल्सियम में शो कर, आप कैल्सियम में भी चेक करते हो ना, अपने आइगन वैल्यूज में देखा होगा 1 + और -i कैल्सियम में शो करता है वो। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट, क्या था, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ओके, तो इसलिए इन जनरल मैं एक रूट कंसिडर करता हूँ अल्फा ± i टाइम्स बीटा। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूँ, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। तो इस केस में तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा अभी ये स्पेयर के लिए होगा। नाउ वी हैव टू ट्रीट दिस पेयर एज वन रूट, नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस पेयर एज वन रूट। व्हाई? क्योंकि ये ऑलवेज बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ऐसा कभी नहीं होता कि अल्फा + i बीटा आ रहा है बट अल्फा - i बीटा उसका रूट नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा पेयर में आने वाला है। तो वो पेयर जो है ना आपकी, उस पेयर को आपको एक सिंगल रूट कंसिडर करना है, सिंगल रूट कंसिडर करना है। ओके, उसमें C1 C2 आने वाले हैं बट आप कंसिडर, जब आप टर्म लिखते हो ना तो टर्म लिखते समय उसको एक पेयर में कंसिडर करके फिर टर्म लिखो, ठीक है। सो व्हाट इज द टर्म करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट? तो इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, e⁻⁴x एज दिस अल्फा इज द रियल पार्ट के करस्पॉन्डिंग ये टर्म आता ही है, आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था। नाउ हाउ यू एडजस्ट दिस बीटा? तो बीटा एडजस्ट करने के लिए C1 cos βx + C2 sin βx। This is the formula to write the complementary function corresponding to complex root। आप देखो पेयर है तो ऑलरेडी इसमें 2 रूट काउंट हो रहे हैं, पेयर है सो ऑलरेडी इसमें 2 रूट काउंट हो रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन में भी C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है। तो वो रिजल्ट आपका एट द एंड रहेगा, जितना रूट का काउंट होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको कंपलसरी यूज करने, ठीक है। नाउ द ऑब्वियसली योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ दिस कॉम्प्लेक्स रूट इज रिपीटेड? ओके, एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। कैन एनीवन टेल मी एक सिंपल केस में 2 ± 3i के लिए बोलो क्या सोल्यूशन मिलेगा? yc। फिर ये आगे के केसेस पे जाते हैं। कैन यू जस्ट टेल मी दिस? अल्फा ± i बीटा के लिए मैंने इन जनरल रिजल्ट दिया है। सो व्हाट इज द yc, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर 2 ± 3i? e⁻²x रियल पार्ट बाहर, C1 cos 3x + C2 sin 2x। 3x सेम ही होगा ये। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द केस वेयर दिस रूट ऑकर इन रिपीटेशन। अभी यहाँ पे पेयर रिपीटेशन में होगी या ऐसा नहीं होगा कि अल्फा + i बीटा ही रिपीट हो रहा है। आपको पता है कि अगर अल्फा + i बीटा रिपीट हो रहा है तो अल्फा - i बीटा भी रिपीट होगा बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ओके, सो इफ द सेम रूट इज रिपीटेड से 2 टाइम्स तो कैसे लिखोगे? रिजल्ट यही है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। रिपीटेशन में क्या होता है? इफ एनी रूट रिपीटेड n टाइम्स इट्स कोएफिशिएंट इज रिप्लेस्ड बाय पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। ओके, सो कैन यू गेस? ये आपको गेस करना है, मैंने आपको रिजल्ट नहीं दिया था अभी तक। कैन यू गेस व्हाट वी हैव टू राइट व्हेन अ रूट इज रिपीटेड 2 टाइम्स? यू जस्ट गेस, ट्राई टू गेस, क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे? e⁻⁴x। यस, गुड। C1 cos βx। हाँ, नाउ दिस C1 इज कोएफिशिएंट, तो रिजल्ट क्या था? कोएफिशिएंट में चेंज होगा ना। जैसे यहाँ पे 1 है तो C1 आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। सो C1 + C2x। हाँ, तो सेम रिजल्ट है यहाँ पे भी सेम है। ये रूट आपका हियर दिस रूट इज रिपीटेड 2 टाइम्स, सो यू हैव टू कंसीडर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन द कोएफिशिएंट। इन द कोएफिशिएंट यू हैव टू कंसीडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। नाउ इंस्टेड ऑफ C1 अभी आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा C1 + C2x। बाकी चीज़ें एज इट इज़, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। cos βx प्लस सेम इधर भी चेंज होगा C3 + C4x sin βx। Is this clear now? So for the complementary function there are only 2 results. One, real and distinct root है
तो टर्म कैसे लिखना है, रियल जो भी डिस्टिंक्ट रूट है उसके करस्पॉन्डिंग e रेज़ टू kx टर्म आता है। कोएफिशिएंट कैसे डिसाइड करना है, इट डिपेंड ऑन द रिपीटेशन, इफ इट इज रिपीटेड n टाइम्स रिप्लेस द कोएफिशिएंट बाय पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, दैट इज ऑल अबाउट रियल एंड डिस्टिंक्ट। कॉम्प्लेक्स में अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा का टर्म क्या होता है वो याद रखो, ठीक है। एंड इफ इट इज रिपीटेड सेम रिजल्ट आप यूज करो, इट्स कोएफिशिएंट इज रिप्लेस बाय पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। ओके, इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल लेने वाला बट इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है इसमें से। Yes, sir. Now we can check this remarks. अभी आपको रिमार्क्स थोड़े बहुत तो समझ में आ जाएंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% बिकॉज फॉर दैट आई नीड टू टेक वन एग्जाम्पल इमीडिएटली। या सो नंबर ऑफ रूट्स, पहला रिजल्ट सिंपल है, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आपने खुद देखा है अभी। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, जितने डिस्टिंक्ट रूट है उतने ही टर्म्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। ओके, आप देखो यहाँ पे। सो टोटल देर आर 3 रूट, 1 2 3 डिस्टिंक्ट रूट, तो 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म, टर्म्स मतलब प्लस से जो डिवाइड हो रहा है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो जितने डिस्टिंक्ट रूट है उतने टर्म्स आते हैं, दैट इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट इज एनी रूट इज रिपीटेड n टाइम्स देन रिप्लेस इट्स कोएफिशिएंट बाय पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, तो मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी में वो ऐड करके दिया। ओके, अभी आप बोलोगे ये सब कुछ कैसे डिसाइड किया? सी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बुक में रेडीमेड है, बट ये आपको जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, तब आपको ऑटोमेटिक एक जगह पे ऐसे क्लिक होगा, हाँ यार ये ऐसे ही होने वाला है, दिस द ओनली वे टू राइट इट सोल्यूशन। सो लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बैंड दिस एडजस्टमेंट, रिपीटेशन हो रहा है तो ऐसे क्यों एडजस्ट करें, सब कुछ आपको मिडल पे समझ में आएगा, नॉट द इनिशियल स्टेज। ओके, एंड नाउ ओके लेट मी जस्ट स्किप दिस पार्ट, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है। हाँ, मतलब मैंने रूट्स दिए, उससे आपको सोल्यूशन लिखना है, सो इट्स बेटर टू टेक डायरेक्टली सम एग्जांपल। ओके, हाँ, तो अभी जो टॉपिक है दिस इज योर एक्चुअल टॉपिक, जिस पे आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है। नाउ आई वांट द 100% कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डायरेक्टली ऐसे आने वाला है। ओके, हाँ, पहले आप मुझे ये बोलो ये कौन से केस का प्रॉब्लम है, केस 1 या केस 2? केस 1 में क्या था RHS 0 है, केस 2 में क्या है, RHS इज नॉन जीरो। केस 1 में जनरल सोल्यूशन एक ही होता है YC, बट केस 2 में जनरल सोल्यूशन YC प्लस YP होता है। सो आपको दिखाई दे रहा RHS 0 है, तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन कैलकुलेट करना है YC, जो भी YC होगा दैट विल बी योर जनरल सोल्यूशन। ओके, तो ये तो क्लियर है कि इस केस में आपको बस YC मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही कैलकुलेट करना है। सो इन सोल्यूशन YC की प्रोसेस क्या है, YC कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे फाई ऑफ डी मिल जाएगा। फाई ऑफ डी मिलने के बाद उसमें फाई ऑफ डी के जगह पे यम पुट करके इक्वेट टू 0 कंसिडर करके, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, सो यूजिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट रूट्स, यम के कुछ रूट्स मिल जाएंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दिस रूट्स यू कैन राइट डाउन द YC। ये आपकी प्रोसेस है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फाई ऑफ डी टाइम्स y इक्वल टू f ऑफ x। कैसे करोगे, क्या करना होगा उसके लिए मुझे? हाँ, पुट dx is equal to d. हाँ, पुट d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D, दिस इज जस्ट द नोटेशन। तो इससे क्या होगा, दिस आई कैन राइट इट एज d स्क्वायर y माइनस 5dy प्लस 6y is equal to 0. I can take y common, so this I can write it as d square minus 5d plus 6 times y is equal to 0, and this look like phi of d times y is equal to 0. अभी जब आप आगे जाओगे ना, आप डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप लिखनी है, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ डी। ओके, सो व्हाट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन? आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? द ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो, फाई ऑफ m इज इक्वल टू 0। व्हाट इज योर फाई ऑफ m? कैन एनीवन टेल मी? फाई ऑफ डी ये, तो फाई ऑफ m क्या होगा? m square minus 5m plus M square minus m square minus 5m plus 6 equal to 0. Tell me its roots. 2 3 हाँ, 3 and 2. 2 and minus 2 minus सीक्वेंस मैटर नहीं करती। आपने पहले 3 लिखा है, बाद में 2 लिखा है, लिखते समय भी पहले सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री लिखते समय पहले 2 लिखा है, बाद में 3 लिखा है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप रैंडम सीक्वेंस से जा सकते हो, सबका करेक्ट होगा वो। ठीक है, एंड देन
your final answer is, so now we have roots of the auxiliary equation. So we can directly write down its solution. So complementary function that is yc is equal to, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है तो क्या सोल्यूशन होगा, c1 C1 e raised to C1 e to the power twice 6 plus C2 e plus to the power C2 twice 6. e raised to 3x. and this is your general solution. As RHS is 0, so your general solution it's only yc, that is this. इतना ही कैलकुलेट करना, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन. इस पे आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 और 2 मार्क्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गिवन क्वेश्चन. आप चेक भी करो. ओके, दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइज दिस, वो सेटिस्फाई करने वाला है क्लियरली, ठीक है. ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. दिस सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर. सो हाँ, यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्टली वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है ना, डी को रिप्लेस करके. सो टेल मी द प्रोसेस. तो क्या करना होगा मुझे डायरेक्टली यहाँ पे, कंसिडर yes auxiliary equation Auxiliary. which is phi of m equal to 0. Tell me this equation, phi of m, huh, M raised to 4 M raised to 4 plus plus 8x square plus plus 16 is equal to 0. Tell me its roots. कैसे करो आप देखो. Tell me its roots. Sit with the calculator, क्योंकि आपको पहले ये लर्न करना होगा तभी आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो. या इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड इट्स रूट्स. substitution. ये बेसिकली क्या है, substitution. हाँ, सब्स्टिट्यूशन. एम स्क्वायर को आप चाहो तो के पुट करके भी इसको लिख सकते हो. सो इट लुक लाइक के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 इज इक्वल टू 0. सो इट इज़ बेसिकली के प्लस 6 ना, स्क्वायर के प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0. बट व्हाट इज के इज एम स्क्वायर. सो एम स्क्वायर प्लस 4 square is equal to 0. that is m square plus 4 m square plus 4 equal to 0. हाँ, m square plus 4 equal to 0 के रूट्स क्या है, Plus minus. प्लस और Plus माइनस minus 2i. 2i एंड 2i. भी सेम फैक्टर है तो वो रिपीट होगा, प्लस और माइनस 2i. सो हियर यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स रूट्स, हियर यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स रूट बट इन रिपीटेशन. ओके, दिस यू कैन राइट इट एज, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 ही होगा. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. नाउ एनीवन टेल मी दी yc कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट के लिए. e रेस टू बोलो, रियल पार्ट 0 तो क्या लिखना होगा, 0x, हाँ, ब्रैकेट में C1 plus C2 C1 plus C2 cos plus C2x. c1 plus c2x cos of imaginary part is Cos 2x twice x. plus c3 C3 plus c4x sin of 2x. Sin of twice x. डन. इतना ही है. तो ये रेज टू 0x 1 ही होगा. सो एट देन दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है. इट इज आल्सो देयर. एक लास्ट लेता हूँ मैं इस केस में. योर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m cube minus 5m square plus 8m minus 4 equal to 0. इसके रूट्स आप कैलसी में कैलकुलेट करो, मुझे बोल दो डायरेक्टली. डू इट ऑन कैलकुलेटर क्विकली एंड टेल मी द फाइनल रूट्स. एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, रूट्स कैलकुलेट करने वाई से लिखना है. यस, एनीवन प्लस डू इट एंड टेल मी द फाइनल रूट्स. प्लीज डू इट क्विकली. One and two. 1 1 1 2. तो आप अगर सब सारे स्टूडेंट कैलसी में कैलकुलेट करते हो ना, तभी आपको एक ड्रॉबैक समझ में आ जाएगा. ड्रॉबैक ऑफ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर डज नॉट शो यू द रिपीटेड रूट. कैलकुलेटर में आपको रिपीटेड रूट नहीं समझ में आएंगे. आई थिंक कैलसी में आपने किया होगा तो आपको 2 ही रूट मिल रहे हैं, 1 and 2. बट दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3. तो इन दोनों में से एक रूट आपका रिपीटेशन में होगा. हाउ यू आइडेंटिफाई दैट रूट. एंड प्लीज नोट डाउन अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो. यस, एनीवन, हाउ यू आइडेंटिफाई योर थर्ड रूट. कैलसी में तो वो रिपीटेड रूट नहीं शो कर रहा है. ये तो क्लियर है कि ये थर्ड रूट एक तो आपका 1 होगा या 2 होगा, बट हाउ यू आइडेंटिफाई दैट.
by satisfying the equation. ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, Sum of the roots. भी सेटिस्फाई कर रहे Big हैं. zero. हाँ, Sum of the roots सम ऑफ द रूट मस्ट बी equal to -5. minus b by 5. माइनस टाइम्स, ये अलग अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, यम स्क्वायर ना, ऐसा ही Yes, sir. तो ये माइनस टाइम्स होता है, ये प्लस माइनस रहता ही है साइन हमेशा. तो सम ऑफ द रूट्स, दिस इज ओनली फॉर अ डिग्री 3 रिजल्ट. अब डिग्री 4 है तो ये चेंज होगा, डिग्री आपको चेंज करनी, वो समझ में आ जाएगा. तो सम सम माइनस ऑफ -5 मतलब आपको सम एडजस्ट करनी है, माइनस ऑफ -5 मतलब आपको सम एडजस्ट करनी है 5. सो टेल मी द थर्ड रूट विच गिव्स यू सम 5. तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 ही होगा. यू कांट कंसिडर 1 इन रिपीटेशन. दिस इज वन ट्रिक, प्लीज नोट डाउन. इफ यू डोंट नो प्लीज नोट डाउन, या ये शायद नहीं, ठीक है ये मैं सेव कर देता हूँ. चलो, दिस इज वन ट्रिक. एक और ट्रिक है, ये शायद 100% आपको नहीं पता होगी. देयर इज वन मोर ट्रिक. रिपीटेड रूट satisfies phi dash of m is equal to 0. क्या मतलब है इसका? phi dash मतलब डेरिवेटिव. रिपीटेड रूट satisfies phi dash of m equal to 0 means what? means what derivative. क्या है डेरिवेटिव? ये आपका phi of m है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 3m 3m square minus 10m plus 8. And plus 8. तो इन दोनों में से कौन सा रूट है, 1 और 2 में से कौन सा रूट है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, 2. आप चेक करो. 1 नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली 2 होगा ही. 1 पुट कर दो तो 3 - 10 + 8 नॉट इक्वल टू 0, सो 100% 2 होगा. ठीक है, दिस इज इन जनरल, ये इन जनरल ट्रिक है, इसमें ये कोएफिशिएंट ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज इन जनरल. नोट, तो ये याद रखो, तभी कैल्सी का यूज कर पाओगे, नहीं तो फिर कैल्सी रहने के बाद भी आपको वो रूट नहीं समझ में आएगा. इफ यू टेक 1 हियर, अगर आप 1 लेते हो विच इज टोटली रॉन्ग, रिपीटेड रूट 1 लेते हो विच इज टोटली रॉन्ग. सो प्लीज नोट डाउन दिस, क्योंकि ये डिफिकल्टी आपको 110% एग्जाम में आने वाली है. ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे रिपीटेड रूट्स के. सो यूजिंग दिस ट्रिक ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई द थर्ड रूट. सो इन दिस केस योर yc इज इक्वल टू, बोलो जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू yc विच इज इक्वल टू एनीवन c1 e⁻1 टाइम्स x. X. आगे क्या करना होगा, 2 रिपीट हो रहा है तो कोएफिशिएंट C2 plus C3x e raised to 2x. डन. ठीक है, ओके. नाउ दिस यू कैन ट्राई. ओके, दिस यू कैन ट्राई, इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. मे बी ये कॉम्बिनेशन होगा कॉम्प्लेक्स रूट एंड रियल रूट का. ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ना, ओके, लेट मी डू इट क्विकली. इतना किया तो ये भी क्यों छोड़ना है. सो m³ करो कैलसी में, 7m² 16m. मुझे रूट्स बोलो. रूट्स बोलो. -1 -3 plus minus iota. प्लस और माइनस 2 आए ना. No, only I. Okay, only I. Yeah. Okay. So these are your roots. Please check. Okay. So can anyone tell me yc complementary क्या होगा? That is your general solution क्या होगा? बोलो. c1 e⁻1 into x is -x. Yes. Plus complex. C2 नहीं, पहले कॉम्प्लेक्स में पहले ही कोएफिशिएंट लिख लेते हैं बाहर, e⁻3x, then in bracket c2, yes, cos of cos of 1 है ना, yes. 1 into x is x, c3 sin x. क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट्स है? इज दिस क्लियर? रियल का रूट, कॉम्प्लेक्स का रूट क्लियर? Yes. ओके, कुछ Yes, sir. डाउट्स है तो आप बोल दो. हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि ये रिपीट होने वाला है टिल द एंड हर एक टॉपिक में हमें, क्योंकि आपको पता चल गया है.
कि जिसमें ये RHS नॉन जीरो भी है ना, उसमें भी ये YC कैलकुलेट करना है. सो इन एवरी एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड YC. ओके, हाँ. सो आई थिंक दिस वी कैन से this is the method to find the complementary function of given linear differential equation. Okay, so or this is all about case 1. ये सब कुछ केस 1 का था. पर्टिकुलर इंटीग्रल स्पेशली केस 2 में ही आता है जहाँ पे आपकी RHS नॉन जीरो आती है. ओके, उसका रीजन आपको समझ में आएगा अभी. सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, उससे पहले एक रिमार्क है. आई विल नॉट गो इन डिटेल एज हाइपरबोलिक फंक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो मैं बस रीड कर रहा हूँ, बट इतना ये नहीं कि आपको ये याद ही रखना है रिजल्ट. इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, मीन्स प्लस और माइनस से 2 रियल और डिस्टिंक्ट है, प्लस और माइनस ए के फॉर्म में चाहिए वो भी, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैन बी रिटन. दिस इज, ये आपको पता है, ये उसका सोल्यूशन होता है c1 e raised to ax, c2 e raised to minus x, बट दिस कैन बी एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. c1 cos हाइपरबोलिक ax प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ax. ये कैसे किया उन्होंने? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक ax एंड साइन हाइपरबोलिक ax. ठीक है, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो मैं स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें. जस्ट रिमेंबर कि देयर इज वन रिजल्ट रिलेटेड विद द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द फॉर्म प्लस और माइनस ए. ओके, हाँ, आवर फोकस इज ऑन पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल? ये आपका गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, सो हाउ यू डिफाइन पर्टिकुलर इंटीग्रल? पर्टिकुलर इंटीग्रल that is denoted by yp is equal to 1 upon this term 1 upon phi of d into f of x. 1 upon phi of d into f of x. अभी आप ये देख रहे हो ना टर्म, ये एक्चुअली आपका ऑपरेटर है. ओके, एंड आपको f of x के ऊपर ये ऑपरेट करना है. आपको f of x के ऊपर ये ऑपरेट करना है. आपको कुछ ऑपरेटर ऑलरेडी पता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d of f of x? d is the operator. So what is the value of d of f of x? हाँ, f dash of x. वेरी गुड. तो ये पता है आपको, d means डेरिवेटिव. सो d of f of x is f dash of x. ओके, बट यहाँ पे आपको 1 upon d या 1 upon phi of d, अब ये 1 upon d नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे. 1 upon phi of d into f of x, ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इट इज नॉट दैट मच ट्रिवियल. So there are some results using which only you can find or you can operate this 1 upon phi of d on f of x. ये solve करने के लिए कुछ results है. ठीक है, so in that our first method is shortcut method. So in that shortcut method there are around 7 to 8 results using which you can find value of this part 1 upon phi of d into f of x. ठीक है, तो definition शायद clear हो गई सबको. Okay. Now tell me what happen if this RHS is 0? Can you tell me what is value of YP? अगर मैं RHS 0 लेता हूँ, ये आपकी YP की डेफिनेशन है. So what is the value of YP? 0. 0. This is the reason why we are not calculating this YP in the differential equation where RHS is 0. ठीक है, तो RHS 0 में YP आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो डायरेक्टली 0 ही आता है. ठीक है, ओके. एंड नाउ ओके, ये ऑलरेडी कवर कर लिया है मैंने कि YC प्लस YP ये सोल्यूशन होता है व्हेन योर RHS इज नॉन ज़ीरो. ओके, रिपीटेड स्लाइड है. ओके, एंड नाउ इन आवर सिलेबस जस्ट टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट ओवर हो चुका है. ओके, अभी जो सेकंड फंक्शन है आपका YP कैलकुलेट करने के लिए, YP आर नॉट अ जनरल सोल्यूशन. जस्ट टू फाइंड YP इन आवर सिलेबस देयर आर 3 मेथड्स. Are you getting my point? These 3 methods are not for to find the general solution. These methods are only to find particular integral. तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? What is your general solution? Y is equal YP to plus YC. Y plus YC. Please understand this. ये important part है. ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लेता तो आपका यही आंसर होता है कि these are the 3 methods to find general solution. जनरल सोल्यूशन के मेथड्स नहीं है. ओके, दिस मेथड्स, फ्रॉम दिस मेथड यू विल गेट ओनली YP. उसमें YC ऐड करके आपको फिर वो फाइनल जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके, तो या एक्चुअली बुक की सीक्वेंस है, बट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी गो विद दिस मेथड, देन विद दिस, देन विद दिस.
ओके इससे क्या होगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इस टॉपिक में भी किसी भी क्वेश्चन के लिए मेथड गिवन नहीं होगी कि सॉल्व this by using shortcut method, solve this by using method of variation of parameter, solve this by using general method. This part is not there in your question में मेंशन नहीं होगा. करेक्ट मेथड आइडेंटिफाई करना यह आपका काम है, ठीक है. एंड वो कैसे करना है, तो जब जो प्रायोरिटी अभी मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप ये चेक करो कि वेदर वी कैन सॉल्व और वेदर वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और नॉट. ये पहले आप चेक करो. इफ नॉट देन गो फॉर सेकंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. इससे भी नहीं हो रहा है तो ही आपको थर्ड मेथड पे जाना है. सो जिस अप्रोच से अभी हम जा रहे हैं उसी अप्रोच से आपको मेथड डिसाइड करनी है. वो आपको लास्ट लेक्चर मतलब ये पूरा होने के बाद आपको वो समझ में आएगा कि मेथड कैसे डिसाइड करनी है. इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो. ओके एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन ओनली वन केस एंड देन विल स्टॉप. ओके तो शॉर्टकट मेथड. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दिस मेथड टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एफ ऑफ एक्स. तो आप हमेशा याद रखो आपके पास इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्वेश्चन में, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, दैट इज वाई सी प्लस वाई पी. वाई सी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, फाई ऑफ एम इक्वल टू 0 लेके उसके रूट्स कैलकुलेट करके. बट वाई पी कैलकुलेट करने के लिए अभी आप शॉर्टकट मेथड से जा रहे हो, ठीक है. दिस इज द अप्रोच, आप शॉर्टकट मेथड से जा रहे हो. बट शॉर्टकट मेथड का डिसीजन ये टोटली आपका एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड रहता है. ओके सो इट मीन्स यू कैनॉट अप्लाई शॉर्टकट मेथड फॉर ऑल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सारे केसेस में शॉर्टकट मेथड से आप नहीं जा सकते. देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, ओके, या देर आर सम केसेस अंडर विच ओनली यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट मेथड. तो कौन कौन से केसेस में आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हो, दोज केसेस आर हियर. So these are the only functions, okay, if it is present on RHS you can apply shortcut method. इनमें से ही अगर कोई फंक्शन आपके राइट साइड में आता है, RHS में आता है, तो ही आप वहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हो. ओके सो अब हर एक केस हमें वन बाय वन डिस्कस करनी है. सो नाउ इट विल टेक अराउंड 2-3 more lectures just to complete this one method. तो पहला फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है राइट साइड में, यू कैन अप्लाई शॉर्टकट मेथड. साइन का फंक्शन आता है, कॉस का फंक्शन आता है, यू कैन अप्लाई शॉर्टकट मेथड. देयर इज वन मोर फंक्शन विच इज मिसिंग, ए रेस टू एक्स, मतलब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का भी फंक्शन आता है, तो भी आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो. साइन हाइपरबोलिक का आता है, कॉस हाइपरबोलिक का आता है, तो भी आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो. राइट साइड में इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब लाइक दिस, पॉलिनोमियल आता है तो भी आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हो. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन, वी इज एनी अदर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन, तो भी आप शॉर्टकट मेथड से जा सकते हो. एक्स मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन, तो भी आप शॉर्टकट मेथड से जा सकते हो. तो इस हर एक केस हमें 1 by 1 लर्न करनी है. सो इट विल टेक अराउंड 2-3 more lectures, इतनी जल्दी नहीं होगा. ओके सो इन टुडेज सेशन आई विल शायद होगा नहीं, बट देखते हैं. ओके एंड दैट होल टेबल इज हियर. दिस इज it cover all the formulas from shortcut method. शॉर्टकट मेथड के सारे फॉर्मूले इसमें से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है. एंड हर एक का रिजल्ट भी मैंने दिया. अगर राइट साइड में फंक्शन, मतलब राइट साइड में अगर RHS में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आता है, तो आप YP कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको रीड कैसे करना है. देखो ये इस कॉलम से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राइट साइड में कौन सा फंक्शन है. फॉर्मूला जो भी है दैट इज ओनली टू फाइंड YP में क्या चेंजेस करने. तो हाउ यू रीड दिस फर्स्ट रो, if on RHS you have this exponential function, in that case in YP replace D by A. A मतलब ये कोएफिशिएंट, तो आपको YP में क्या करना है, D के जगह पे A पुट करना है. इतना ही है रिजल्ट, D के जगह पे A पुट करना है, ठीक है. रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज, ठीक है. बट देर आर सम केसेस, देर आर दिस केस ऑफ फेल्योर कब आने वाली है, व्हाट हैपन इफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0. आपका YP क्या होता है, YP का फॉर्मूला क्या है, एनीवन, YP का फॉर्मूला क्या है, 1/5 of D into f of x. पहला रिजल्ट क्या है, अगर आपका f of x एक्सपोनेंशियल आता है तो आपको D के जगह पे A पुट करना है. आपने पुट किया तो नीचे 1/5 पे आ जाएगा. व्हाट हैपन इफ फाई ऑफ ए इज 0, फाई ऑफ ए अगर 0 आता है तो विच इज नॉट एग्जिस्ट, इट गिव्स यू इन्फिनिटी वैल्यू. इन्फिनिटी इज नॉट द सोल्यूशन.
ठीक है। तो केस ऑफ फेल्योर कब आती है, जब आपका डिनोमिनेटर जीरो आता है। व्हेन दिस केस कम, व्हेन डिनोमिनेटर बिकम जीरो। इफ योर डिनोमिनेटर बिकम जीरो, देन दैट इज द पार्ट ऑफ द केस ऑफ फेल्योर, ठीक है। सो हाउ यू रिमूव दिस केस ऑफ फेल्योर फ्रॉम दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, I think that whole part we'll take in next lecture. Okay, so here we'll stop. Okay, next session में ये पहले चारों केसेस हो जाएंगे, ठीक है।